Good afternoon, all of you. I'm waiting for two more students to join. One among them is a new student. So we'll join in a minute or two. So can we start? Everybody in? Any new student today? Attending for the first time, attending physics for the first time? हाँ सर ते लॉगिंग करते हैं सर. Okay, okay. हाँ. So new student is just logging in, so I have to wait because I have to give certain instructions. तब तक अपन रिवाइज करेंगे. तुम्हारा नोटबुक लेके बैठो. लास्ट टाइम हमने जो किया था, ओके, एक बार हम देखेंगे एंड फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो एवरीबडी बेनिफिट्स. Good morning, sir. Good morning. Who is this? What is the name? Arya. Okay, Arya, new student, right? Yes. Okay, so don't worry, you will understand everything because whatever we did last time, first we will revise and then we'll move forward. Okay, so you have not missed anything. Rahi baat, few things that I have written. So I'll just ask somebody to give you the photo. Okay, तो उतना notebook में लिख देना, ठीक है? Whatever we have done, उतना notebook में लिख देना. I think you'll have to leave about 3 or 4 pages, 3 or 4 sides of pages और वहां से आगे लिखना start करो. Whatever we are doing today, ठीक है? Okay, sir. So we had started with the first chapter. The name of the chapter is Units and Measurements. Okay, and rest of you can coordinate with me through chat, or you can just open the speaker and talk. Okay, so no problem. Speaker बंद मत रखना. तो last time हमने जो किया था, okay, वो जरा open करना. हम revise करेंगे क्या क्या किया था. You go on telling me. ठीक है? I cannot see your faces, so you can tell me through chat. Students, please put on your cameras. Okay, fine. So now it is good. Let's start. सबसे पहले नेहा, can you tell me हमने start कहाँ से किया था? First thing we have written, हमने लिखा है definition Yes, किसका? sir. हाँ, So बोलो किसका? physical quantity. What is physical quantity? Yes. Arya, no, new student. Physical quantity क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ. Arya, right? So Arya, last time we did a few things like definitions. Physical quantity क्या है? Fundamental quantity क्या है? तो उसमें सबसे पहले physical quantity. What is a physical quantity? Any quantity that can be measured is called as physical quantity. कोई भी ऐसा quantity जिसको हम नाप सके, measure कर सके, प्रमाण दे सके कितना है, उसको बोलते हैं physical quantity, which can be accurately measured. Accurately का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला 5 meters, the length of the bench is 5 meters, तो तेरे को accurately पता चला कि 5 meters मतलब कितना.
ओके द वेट ऑफ दिस पाउडर इज 10 ग्राम्स। तो तेरे को एक्यूरेटली पता चला 10 ग्राम्स मतलब एग्जैक्टली इतना होगा, ये कंट्री में इतना, वो कंट्री में उतना, ऐसा नहीं होता। 10 ग्राम्स मतलब 10 ग्राम्स होता है हर जगह। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके सो ये फर्स्ट डेफिनेशन था फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद नया यू गो ऑन टेलिंग मी नेक्स्ट क्या किया था फिजिकल क्वांटिटी के बाद। So physical quantities के हमने examples लिखे थे. ओके तो अभी जस्ट मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी का? फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब हम माप सकते हैं ना। एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, पावर, हीट, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ एक स्टूडेंट मेरे से एक बार पूछा था कि सर एरिया होगा क्या फिजिकल क्वांटिटी? मैं लास्ट टाइम ये लोगों को बोला हाँ एरिया भी होगा। तो स्टूडेंट बोलता है सर एरिया तो मैथ्स में पढ़ा था ना, तो मैथमेटिकल क्वांटिटी बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में पढ़ा तो क्या हुआ, उसको हम मेजर कर सकते हैं ना एक्यूरेटली। तो एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है, भले उसको मैथ्स में पढ़ा हो। ओके सरफेस एरिया हो, फिर डेंसिटी हो, all these quantities which can be accurately measured are called as physical quantities. Okay, second definition हमने कौन सा किया था नया बोलो? So it was about units. Units. Okay, तो मैंने इधर इन लोगों को बताया यूनिट्स क्या है। यूनिट्स क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मैंने तेरे को लेंथ बताया बेंच का कि 5 मीटर्स है। ओके उसमें 5 मीटर्स, 5 के सामने जो लगा है ना इसको मीटर्स बोलते हैं। इसके बगैर तेरे को समझेगा नहीं, मैं सिर्फ 5 बोला तो समझेगा नहीं। 5 सेंटीमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है, क्या है तो कितना है। सो 5 मीटर्स मतलब क्या? 5 टाइम्स 1 मीटर। मैंने बोला 6 मीटर्स मतलब क्या? 6 टाइम्स 1 मीटर। तो 1 मीटर कितना है तेरे को पता है? 1 मीटर का डेफिनेशन होता है कि 1 मीटर इतना होता है करके, उसका 6 गुना, 10 गुना, 15 गुना। तो इसीलिए अपन मीटर्स में बोलते हैं। तो वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। ये 1 मीटर कितना है ये चेंज नहीं होएगा। मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बताता हूँ 1 मीटर मतलब क्या। पेरिस का एक म्यूजियम है, वहां पे एक इरेडियम का रॉड रखा है। इरेडियम इज अ मटेरियल। ओके उसको ना ऐसे ऐसे जगह पे रखा है, ऐसे टेम्परेचर में रखा है, ऐसे कैबिनेट में रखा है कि वहां पे ना मॉइस्चर आ सकता है, ना कुछ हो सकता है। वैक्यूम में रखा है उसका, ना उसका मास बदल सकता है, कुछ नहीं उस पे हो सकता है। उस रॉड का लेंथ लिया है 1 मीटर। और दुनिया के जो भी 1 मीटर के रूलर्स हैं या जो भी 1 मीटर है वो उसका उसका कॉपी है, उससे बने हुए। ओके वैसे ही वही म्यूजियम में एक स्टोन है, एक स्टोन है, स्टोन को रखा गया, अगेन उसको वैक्यूम में रखा गया है। उस पे इतना इतना लाइट, ओके लास्ट ईयर के बुक में था, इतना इतना लाइट फोकस किया है, 24 आवर्स उस पे लाइट गिरता है। वो स्टोन का जो मास है ना उसको 1 kg लिया गया है। और दुनिया के जो भी है 1 kg के रेप्लिकास बने उसके। रेप्लिकास मतलब उसके कॉपीज बने। ओके तुम बोलोगे इतना क्यों? ये परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कल को झगड़ा हो सकता है ना। कल 1 पर्सन में से नो नो माइन इज 1 किलो, अदर विल से नो माइन इज 1 किलो। तो ऐसे में अगर 2 जन झगड़ा कर रहे हैं तो मुझे रेफरेंस चाहिए ना कि भाई किसका सच्चा है। ये रेफरेंस है, तो मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। ओके अब तुम बोलोगे सर कौन झगड़ा करेगा 1 किलो के लिए? अगर मैं सब्जी खरीदने गया, बटाटा या कांदा खरीदने गया, एक हाथ कम हुआ ज्यादा हुआ तो मैं क्या इसको रेफर करूंगा? भाई ऐसा नहीं है, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। ओके रॉकेट्स स्पेस में छोड़ना है, तो तुम्हें पता है 1 मिलीग्राम से भी डिफरेंस आ सकता है। रॉकेट आउट ऑफ ऑर्बिट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां प्रिसीजन चाहिए। तो मुझे अगर डाउट हुआ कि मैं जो यूज कर रहा हूँ शायद 1 kg नहीं होगा या 1 ग्राम नहीं रहेगा, तो आई कैन ऑलवेज कंपेयर। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब इसका डेफिनेशन चेंज नहीं होएगा अगले करोड़ों सालों में, कभी चेंज नहीं होएगा। स्टैंडर्ड है, हर कंट्री में उसका डेफिनेशन सेम ही होगा। इधर का 1 किलो ब्रिटेन के 1 किलो से अलग नहीं होगा। ओके सो फ्रेंच में इफ यू से 1 पाउंड, तो यहाँ पे भी 1 पाउंड उतना ही होगा। इसीलिए द starting few important words. What is unit? The standard used for the measurement of a physical quantity is called as unit. Unit क्या होता है? एक standard होता है। Okay? ये बदलेगा नहीं कभी, हर country के लिए same होता है। A standard used for the measurement of a physical quantity is called as unit. ना second definition. Okay?
अभी यूनिट्स का भी एग्जांपल दिया होगा नीचे। यूनिट्स का एग्जांपल क्या है? जैसे मीटर हुआ, न्यूटन हुआ, सेंटीमीटर हुआ। ओके, सो ये सब यूनिट्स के एग्जांपल है। किलोग्राम, जूल्स, वोल्ट, एम्पियर, these are all examples of units. Third, I'll just interrupt for a minute. तुम लोग ने नोट्स खरीदा ना, टेक्स्ट बुक खरीदा? मैंने लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक खरीदने बोला था, टेक्स्ट बुक खरीदा सबने? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गेट टेक्स्ट बुक। विदाउट टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम होगा। देयर आर मेनी थिंग्स जो डायरेक्टली मैं टेक्स्ट बुक पे मार्क करने बोलूंगा। सो we are not going to waste time. मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, we can cut short few things, we can write few things which are important, mark few things. So please get the textbook, sit with textbook. Okay, उसके बाद क्या था? कैन यू टेल? लावण्या बताओ आगे क्या किया था अपन ने यूनिट्स के बाद? System of units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी तुम बता सकते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से होते हैं? सो दिस इज रिवीजन कम वाइवास टाइप। ओके, कितने CGS सिस्टम्स होते हैं बोलो? 4. CGS, 4. MKS, FKS and SI units. यस यस। सो पहला CGS लिखा था हमने, दूसरा MKS कभी ना कभी सुना होगा, तीसरा FPS एंड चौथा SI सिस्टम। ओके, तो CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, FPS क्या होता है, SI क्या होता है? CGS as the name suggests, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ओके, इसका मतलब अगर तुमने डिस्टेंस सेंटीमीटर में बोला तो कौन सा सिस्टम में बोला? CGS में। अगर तुमने मास को ग्राम्स में बोला तो कौन से सिस्टम में बोला? CGS में। अगर टाइम को तुमने सेकंड्स में बोला तो कौन से सिस्टम में बोला? CGS। वैसे ही अगर डिस्टेंस को मीटर में बोला तो कौन सा सिस्टम? MKS। मास को किलोग्राम में बोला, किलोग्राम, तो कौन सा सिस्टम? MKS। और टाइम खैर सब सिस्टम में सेकंड्स में ही आएगा। FPS क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। ये जनरली यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है। वी डोंट से पाउंड्स, वी से इन किलोग्राम्स। वैसे ही फीट में नहीं बोलते, हम मीटर्स में बोलते हैं। अगर बिल्डिंग वगैरह है तो जनरली फीट में होता है, कितने फीट का है घर, कितने फीट का बालकनी है, तभी फीट में बोलते हैं। और SI सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम इंटरनेशनल। व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल? सिस्टम इंटरनेशनल मतलब वो MKS सिस्टम ही होता है, उसका कंटिन्यूएशन। ओके, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अनुष्का जवाब देना। अगर मैंने बोला 4 सेंटीमीटर्स तो कौन से सिस्टम में बोला? CGS. CGS। ओके, लेंथ सेंटीमीटर में है तो CGS। क्योंकि मिस्टेक मत करना। ओके, मैंने 4 किलोमीटर्स बोला ना तो बच्चे बोलते हैं MKS, क्योंकि यहाँ पे K है। नहीं भाई, K किसके लिए? किलोग्राम का K है, वो किलोमीटर का K नहीं है। अगर मैंने बोला 4 किलोमीटर तो कौन से सिस्टम में आएगा? अनुष्का, यू ओनली टेल। 4 किलोमीटर्स बोला तो कौन से सिस्टम में आएगा? M. सॉरी, योर माइक इज ऑफ। 4 किलोमीटर्स विच सिस्टम अनुष्का? नहीं आया आवाज। डोंट बी इन अ हेस्ट टू क्लोज द माइक। माइक ऑन करने के 1 सेकंड के बाद आंसर देना और फिर 1 सेकंड के बाद बंद कर। नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आई विल गिव द आंसर। अगर मैंने 4 किलोमीटर्स बोला तो कोई भी सिस्टम ने, ना MKS, ना CGS, ना FPS, none of the system. ओके, ऐसा जरूरी नहीं होता है, कोई ना कोई सिस्टम में होना ही चाहिए। ओके, सो ये थे 4 सिस्टम्स। अगर मैंने 4 फीट बोला तो कौन सा सिस्टम है? FPS। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या किया था अपन ने? लावण्या, प्लीज टेल अस व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग वी डिड? 2 types of physical quantities. Fundamental quantity and Okay. derived टाइप्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज किया था। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके,
कौन से दो होते हैं? एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? नाम से ही पता चलता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ऑब्वियसली डिराइव्ड क्वांटिटी किसी से डिराइव होता है और फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से डिराइव नहीं होता है, ओरिजिनल क्वांटिटीज। ओके, सो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? डेफिनेशन सुनो। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर मेजरमेंट। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? रिपीट आफ्टर मी। फंडामेंटल क्वांटिटीज are those quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्मूला में, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को फॉर्मूला ही नहीं है इन शॉर्ट। ओके, सो ऐसे कौन से क्वांटिटीज होते हैं जो फंडामेंटल है? 7 क्वांटिटीज हमने लिखे थे, बोलो कौन सा? लेंथ, फिर मास, बता सकते हो आगे? टाइम, फिर फोर्थ कौन सा? current, temperature, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट लिखता हूं सिर्फ। फिफ्थ टेम्परेचर, ये सारे तुमने पढ़े हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, एक भी नया नहीं है। सिक्स्थ कौन सा है? luminous intensity, लुमिनस इंटेंसिटी, ये नया है। लुमिनस मतलब रिलेटेड टू लाइट, इंटेंसिटी मतलब कितना पावरफुल है। सो लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट का इंटेंसिटी, लाइट कितना पावरफुल है, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड लास्ट कौन सा है? amount of substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पहले पढ़ा है, 4 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन, मोल्स वाला होता है ना, उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलता है। और लुमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट का पावर कितना पावरफुल है। ओके, सो ये सब क्या कहलाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लेंथ मेजर करना है तो सीधा लेंथ मेजर करोगे, मास तो सीधा मास मेजर करने की किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, जैसे एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो उसको बोल देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डेंसिटी हुआ, डेंसिटी देखो डिराइव्ड है ना। व्हाट इज डेंसिटी? इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो फंडामेंटल मतलब क्या? किसी और पे डिपेंडेंट। डिराइव्ड मतलब इनसे बनेंगे। ये 7 क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी होंगे और इनको पैदा करें। ओके, सो दीज क्वांटिटीज they rearrange among themselves, okay, like multiply, divide, add, whatever, and form these new quantities. So derived quantity का definition क्या है? Derived quantities are those quantities which depend on the fundamental quantity for their measurement. Okay, then I taught you there are 2 more fundamental quantities, but they are not included in that list. They are called as supplementary quantities. क्या बोलते हैं इनको? Supplements, supplementary quantities. And I told you what is the example, what is the meaning of supplementary quantity? Supplementary मतलब fundamental ही है, but इनको main list में नहीं include किया। मैंने तुम्हें example nutrients क्या दिया था, जैसे proteins, carbohydrates, okay, ये सब क्या है? Nutrients, okay, vitamin A, vitamin B, vital amines, ये important है अपने body को, vital है, okay। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन के, विटामिन ई ये सब important नहीं है, वो भी है, लेकिन उनको supplement के list में डाला, extra। ओके, इंपॉर्टेंट है बट एक्स्ट्रा, अदर देन द हाईली इंपॉर्टेंट। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल क्वांटिटी 7, और 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका नाम, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सो व्हिच आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। कौन सा है बोलो? प्लेन एंगल, ये स्टडी किया है पहले, और दूसरा है सॉलिड एंगल, ये अभी स्टडी नहीं किया अभी तक, ये 12th में आएगा। ओके, प्लेन एंगल मतलब क्या? ये नॉर्मल एंगल 30 डिग्री 20 डिग्री, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ ना, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। प्लेन एंगल किस में मेजर होता है? रेडियन। यूनिट्स क्या है बोलो? रेडियन, मालूम होगा तुम्हें,
रेडियन में मेजर होता है, शॉर्ट फॉर्म RAD. एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल लाइक अ कोन. ये जो एंगल बनेगा ना अंदर, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल. ओके, तो सॉलिड एंगल इज जनरली मेड बाय एनी सरफेस एट अ पॉइंट. ये पॉइंट है, ये सरफेस है, बोलो एंगल क्या होगा? तो इसके अंदर का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. ओके, ये लाइंस जो ज्वाइन करते हैं ना, उसके अंदर का जो एंगल होगा वो होगा सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल मतलब 3D वाला एंगल. और वो किस में मेजर होता है? वो मेजर होता है स्टे रेडियंस में. STE आएगा रेडियंस के सामने, स्टे रेडियन. सो यहाँ पे आएगा SR. ओके, तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, आकांक्षा, कैन यू लुक एंड टेल मी, लास्ट टाइम हमने इसके बाद क्या किया था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के नीचे? Rules for writing unit. ओके, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, यही किया था ना? Okay, so what are fundamental units and derived units? The units of the fundamental quantity are called as fundamental units, and the units of the derived quantity will be called as derived units. मतलब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट. तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट. सिंपल है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट. और डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड यूनिट. तो डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल क्या है? डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल है जैसे इसका डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट होगा, बोलो क्या होगा वो? kg पर मीटर. ओके, ये डिराइव्ड यूनिट है. एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर. तो इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट. और क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी. सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर स्क्वायर इज अ डिराइव्ड यूनिट. Likewise, current is a fundamental quantity and ampere is a derived unit. Okay, I hope the new student is understanding. Yes. Okay, चलो इसके बाद हमने क्या किया था? Can somebody remind me? Units. Okay, rules for writing units किया था इसके बाद. ठीक है, तो rules for writing units तो मुझे याद है कुछ 3 या 4 rules हमने किए थे. So we'll see what are the rules for writing unit and वहां से फिर आगे. Rules for writing unit. ये रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, यूनिट्स लिखने के लिए. ओके, अनुष्का, प्लीज रीड द फर्स्ट रूल दैट वी हैव रिटन. The symbol name after scientist, if written in short form, should be in capital. Example NJWAVK. Okay, so देखो, as you people know, few units are named after scientists. जैसे न्यूटन हुआ, वोल्ट हुआ, एम्पियर हुआ. तो उनका सिंबल्स अगर लिखना है तो दे शुड बी रिटन इन कैपिटल. एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे 4 न्यूटन कैपिटल में आएगा. और अगर फुल फॉर्म में लिखना है, किसी को फुल फॉर्म में लिखना है, मेरे को शॉर्ट फॉर्म नहीं पसंद है, हाँ तो लिख भाई, लेकिन कैपिटल में मत लिख. 4 न्यूटन मतलब क्या होगा मालूम है? ये 4 न्यूटन की बात हो रही है, 4 साइंटिस्ट न्यूटन की बात हो रही है. तो कैपिटल में नहीं लिखने का. अगर फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो फुल फॉर्म लिखते वक्त छोटा लिखने, ऐसा है. कैपिटल लिख, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हो तो कैपिटल में. लाइकवाइज वन मोर एग्जांपल, 5 एम्पियर, लेकिन फुल फॉर्म में क्या आएगा? 5 AMP, छोटा है देखो. तो व्हाट शी जस्ट रेड, आई विल टेल यू कि अगर सिंबल लिखना है, सिंबल या शॉर्ट फॉर्म, तो कैसे लिखोगे? कैपिटल में. नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट रहेगा तो, हाँ, किसी को भी मत लिखो, मीटर को मत लिखो 4M करके, तो गलत हो जाएगा. Meter is not named after scientists. You exactly know which all are named after scientists. 4 volts, volts is named after scientists. और अगर full form में लिखना चाहते हो तो क्या आएगा बोलो? Then you have to write in small letters. Okay? ये अपना second point था. Second point में वही लिखा होगा कि the full forms, even though they are named after scientists, should be written in small letters. यही है ना अनुष्का? Please tell me. Second point read करो.
The full form of the units named after scientists should be in small letters. Example, Yes. 4 Newton, S Joule and 5 watt. Yes, S जूल नहीं है, 5 जूल है. Sorry. ओके, सो ये था. उसके बाद थर्ड में लिखा होगा मैंने कि देयर शुड बी नो पंक्चुएशंस आफ्टर राइटिंग द यूनिट्स. पंक्चुएशंस का मतलब क्या होता है? कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनको पंक्चुएशंस बोलते हैं. ठीक है, तो देयर शुड बी नो पंक्चुएशंस आफ्टर राइटिंग द यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक, और तुम्हारा आंसर है 3 फोर्सेस सर, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. तो ऐसा लिखना है, उसको ऐसा नहीं लिखना है 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, फुल स्टॉप. ये गलत मेथड होगा. देयर शुड बी नो पंक्चुएशंस लाइक दिस, फुल स्टॉप, कामा आफ्टर राइटिंग द यूनिट्स. ओके, अभी आर्ग्यू के लिए तुम बोल सकते हो सर आपने तो डाला, देखो यहाँ पे तो आपने डाला ना, कॉमा डाला, यहाँ पे भी डाला कॉमा. नहीं भाई, ये एग्जाम्पल के लिए दिया था. ओके, दिस इज फॉर एग्जाम्पल. ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली नहीं लिख रहा हूँ. मैथ्स में अगर तुम्हें लिखना है कि 3 फोर्सेस है, नेम द फोर्सेस, देन यू विल राइट इट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. ये तो मैं सिर्फ प्रोज लिख रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल है, इसलिए कॉमा डाला. ओके, सो दैट डजंट स्टैंड वैलिड, दैट रूल डजंट स्टैंड वैलिड हियर. आगे क्या लिखा था हमने, कोई याद दिला दो. Short form of unit should not be written in plural. वेरी राइट, परफेक्ट है. शॉर्ट फॉर्म शुड नॉट बी रिटन इन प्लूरल. तुम्हें 4 मीटर्स बोलना है, बोल सकते हो. 4 मीटर एक्चुअली प्रॉपर है, पर 4 मीटर्स बोलना है तो बोल सकते हो. बट while you write it, you don't write like this. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखना गलत हुआ. एमएस क्या होता है? कुछ नहीं होता है, गलत है. तो तुम्हें फुल प्लूरल में लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? METRS, मीटर्स. ओके, सो आई क्योंकि देखो ये क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड ऐसा रीड करेगा ना कोई. क्यों नहीं लिखते प्लूरल में? एमएस लिखा मतलब मीटर इंटू सेकेंड होगा. किसी ने 4 न्यूटन्स ऐसा लिख दिया, NS, तो पढ़ते वक्त क्या लगेगा? न्यूटन इंटू सेकेंड्स. तो वो अवॉइड करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? 4 NEWTON, न्यूटन्स. अगर तुम्हें प्लूरल में लिखना है तो फुल फॉर्म में रख. शायद हमने यहाँ तक किया था, बराबर है? आगे कुछ नहीं किया था ना. चलो अभी मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, सो ये यूनिट्स के जो रूल्स है, यही सिलसिला हम जारी रख रहे हैं, और अभी हम 5th रूल लिखेंगे. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक 5th. ओके, अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, एक्सेलरेशन जैसे, एक्सेलरेशन समझते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर ना? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. अपॉन टाइम बोलेंगे तो नीचे आएगा सेकंड. सो एक्सेलरेशन वैसे सबको मालूम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. सुना होगा ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर यू नो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मतलब मीटर पर सेकंड के नीचे सेकंड, उसको ऐसे नहीं लिखने का. ओके, यू कैन नेवर राइट यूनिट लाइक दिस, मीटर पर सेकंड, ऐसे नहीं लिखना. ओके, तो कैसे लिखने का? इसको ऊपर ले जाने का, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिखने का. ये मल्टीप्लाई होगा इससे. ओके, सो दैट इज वन रूल कि अगर कोई यूनिट जिसका डिनोमिनेटर है, जैसे ये मीटर पर सेकंड, वो डिवाइड होगा किसी और से, तो you never say meter per second. How will you say? Meter per second square. Okay, so let's write this. Likho, the unit in numerator and denominator should be written as one ratio. The unit in numerator and denominator should be written as 1 ratio. Okay, देखो ये गलत है, ये 2 रेशियो, ये सही है, ये 1 रेशियो है. सो क्या सही है लिखना? एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट लाइन पे, एग्जाम्पल मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 रेशियो, राइट है, और ये गलत है. ओके, गलत एग्जाम्पल है, मीटर पर सेकंड ऐसे नहीं लिखना, ये गलत पकड़ा जाए. इट शुड बी रिटन एज 1 रेशियो.
ओके, नेक्स्ट रूल देखें हम, नेक्स्ट रूल लिखें इफ यू हैव रिटन दिस। तो चलो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर कौन सा है, शायद 6th है। 6th रूल लिखो, द यूज ऑफ combination of units and symbols must be avoided. Use of combination of units and symbols must be avoided. मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मत करो कि सिंबल भी यूज कर रहे हो और फुल फॉर्म भी यूज कर रहे हो, तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मत लिखो, ये सही है मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखना सही है, ये ऐसा लिखना गलत होगा। मीटर फुल में लिखा, पर सेकंड, ये क्या है, फुल लिखना है तो फुल लिखो, ओके। शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करो, कॉम्बिनेशन मत यूज करो, एक फुल फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता रहेगा क्या है, तो गुड दे आर डिस्कसिंग इन दिस ऑल दिस इन द फर्स्ट चैप्टर ओनली, बिकॉज आगे से इस पे मार्क्स कटेगा। तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मीटर पर सेकंड फुल फॉर्म, बट डोंट राइट मीटर डिवाइडेड बाय एस, तो वो गलत हो जाएगा। सो आइदर फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, नेवर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ओके। सो ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। ये एग्जांपल भी बता दो उसके नीचे, तो समझता है वो क्या बोलना चाहता है। अगर अदरवाइज द स्टेटमेंट merely written, it causes confusion. Okay, next पे जाते हैं। 7th point, a prefix, spelling बताता हूँ। prefix क्या है मैं समझाऊंगा। pre, fix, fix, a prefix symbol is used, sorry, can be used before the symbol of the unit. A prefix symbol can be used before the symbol of unit. इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ प्रॉपरली। नेक्स्ट पेज लेता हूँ and I will show properly prefix का मतलब क्या है। prefix मतलब सिंबल से पहले अपन जो लगाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैं सारे प्रीफिक्सेस डिस्कस करता हूँ। अगर मैंने बोला 1 ms, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म में अगर पढ़ना है इसको 1 मिली सेकेंड। अब तुम पूछोगे मिली मतलब कितना, मिली मतलब मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻³ लिखना है मिली सेकेंड के लिए, 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली सेकेंड कितना होता है, 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड्स। लिखना मत, पहले देखो सब एक बार आ जाए फिर लिख देना। नेक्स्ट होता है 1 μs, 10⁻³ के पावर्स में ये बढ़ेगा, मतलब 3 का टेबल, ये 10⁻6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। म्यू मतलब माइक्रो, म्यू फॉर माइक्रो, ये म्यू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। म्यू, ये यू नहीं है, म्यू, म्यू, ओके। 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा 6 के बाद, बोलो 10⁻⁹। आइडिया आ गया होगा क्या होगा ये, 1 नैनो सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 नैनो सेकेंड, NS। नैनो मतलब 10⁻⁹, नैनो सेकेंड। इसके बाद आइडिया हुआ आया होगा क्या है, इसको बोलते हैं 10⁻12। 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा ना, ओके। सो दैट इज 1 PS, इसको बोलते हैं 1 पिको सेकेंड।
ओके, ये नीचे नीचे जा रहा है, वैसे ही बढ़ भी सकता है। ओके, बढ़ सकता है मतलब इट कैन बी 10⁻3। ओके, तो किलो हो जाएगा 1 किलो सेकेंड, 1 kS। सो हाउ विल यू से 1 किलो सेकेंड? किलो मतलब 10⁻3, सो 10⁻3 आएगा सेकेंड्स। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? 10⁻6 आएगा। सो वो क्या होता है? 1 कैपिटल M S, और इस कैपिटल M हियर मेगा, 1 मेगा सेकेंड, like that. Okay, so you have this much. So please take this down. इसको ऐसे लिखना, okay? और ऐसे नहीं लिखने का, like you cannot write 1 mu s 1 n s, ऐसे नहीं लिखने का। 10⁻² के पावर्स में लिखने का इसको, okay? कि 10⁻³ seconds, 10⁻⁻6 seconds ऐसे। So please take this down. Okay. नेक्स्ट, सो अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट जो है उसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा। मैं जब डेफिनेशन बताऊंगा तभी तुम्हें कुछ नहीं समझेगा, और मैं जब एग्जांपल्स लूंगा, थोड़ा एग्जांपल्स बताने के बाद तुम्हें समझेगा कि डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। बट उससे पहले विल डिस्कस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो थोड़े लॉज है, तो मुझे बताते जाना एज आई एम राइटिंग, ठीक है? सो फर्स्ट लॉ देखो, सही है कि गलत। अगर मैंने बोला a⁻m into a⁻n, ठीक है? लावण्या, कैन यू पुट ऑन योर माइक एंड टेल मी क्या आएगा a⁻m into n? a⁻m plus n, ओके, ऐड हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देना है, मैं इसके नीचे एग्जाम्पल के साथ लिखता हूँ, ठीक है? बेटर होगा, because few students understand with example. 10⁻³ into 10⁻3, 10⁻² into 10⁻3 क्या हो जाएगा? It will not be 10⁻6, it will be 10⁻5। करके देखो, 100 into 1000 कितना होगा? 100 into 1000 10⁻5 बनता है ना? सो याद रखना प्लस हो जाए। ओके, बाद में लिखना, फिर से अभी सिर्फ सुनना। सेकेंड, अगर ऐसा है a⁻m upon a⁻n, नेहा पोरे, कैन यू टेल मी क्या होगा a⁻m upon a⁻n?
लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये तो 8th में वगैरह पढ़ा था शायद, 8th या 9th, तभी तो ऑनलाइन स्कूल नहीं था, तो आना चाहिए। So A raised it to will m, get multiply. नहीं, इट विल बी सब्ट्रैक्शन, a raised to m minus n, ऐसा हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। एग्जांपल के तौर पे देखो, 10 raised to 3 upon 10 raised to 2 क्या बनेगा? It will be 10 raised to 1, like it is 1000 upon 100, no? ये कैंसिल होने के बाद क्या बनता है? देख, 100 कैंसिल हो, 10 raised to 1 तो हुआ ना सब्ट्रैक्शन। Isn't it 10 raised to 3 minus 2? 10 raised to 1। ओके, सो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है, पहला और दूसरा हो गया। प्लीज कॉपी दैट। ये एग्जाम्पल करके बोल सकते हो, एग्जाम्पल ऐसा लिखते हैं। ओके, चलो थर्ड अभी सुनो, सोच समझ के बोलना। a raised to m into a raised to minus n क्या होगा? ये a raised to m into a raised to minus n क्या होगा? Is to minus mn. परफेक्ट, a raised to m minus n। ओके, जैसे 10 raised to 4 into 10 raised to minus 3 तो क्या बनता है? ओके, करके देखना, 0.00 या ये 1 upon 1000 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? इट विल बी 10 raised to 1, एग्जाम्पल के तौर। लाइकवाइज बाद में कॉपी करो, अभी नहीं। a raised to m upon a raised to minus n, तो भले ये डिवीजन में है, ये ऊपर जाके क्या बनेगा? m plus n। फॉर एग्जाम्पल 10 raised to 4 अपॉन 10 raised to minus 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 3 बनता है। ओके, और वो क्या बनेगा फिर? 10 raised to 7, 10 raised to 4 plus 3 that is 10 raised to 7। फिफ्थ, इससे ये क्लियर हो गया कि a raised to n रहेगा तो ऊपर आने के क्या बाद क्या बनेगा? a raised to minus n। फॉर एग्जाम्पल 10 raised to 3 रहेगा तो ऊपर आने के बाद क्या बनेगा? 10 raised to minus 3 रहेगा। So I am well aware that students are not comfortable with this when I do the sums, so इसलिए मैंने ये पहले ही डिस्कस किया है, साइड में लेके 10 raised to minus 3। तो 6 ऐसा ही a raised to minus n रहेगा तो क्या बनेगा ऊपर आने के बाद? ऊपर आने के बाद बनेगा a raised to n। ओके, और इसका एग्जाम्पल 1 upon 10 raised to minus 2 तो ऊपर आने के बाद क्या बनेगा? एग्जाम्पल है ये 10 raised to 2। ओके, तो 3 to 6 खत्म कर। 3 4 5 6, this is you write as example, this is example।
Okay, I'm taking a new page. Tell me when you're done. Okay, done. चलो next page आता हूँ. I'm not saving. New page. So this was 6th. So 7th क्या आएगा? A raised to m raised to n. क्या आएगा? First, anybody can tell me? Confident? हो तो बोलना. दिव्या? Will get multiplied. Yes. Now it will get multiplied. You're right. यहाँ a raised to m into n. So यहाँ पे आएगा 10 raised to 2 का क्यूब. तो 10 raised to 2 का क्यूब असल में क्या होता है? 10 raised to 2 into 10 raised to 2 into 10 raised to 2 ना क्यूब हुआ. ऐड करना अभी तो 6 हो जाएगा. That's why. Okay, so ये स्प्लिट भी करके बताता हूँ. एग्जांपल जो लिया है कि भाई दिस इज Okay, I hope you got this. Okay, 10 raised to 2 raised to minus 3 क्या आएगा? 10 raised to minus 6. Copy 7th and 8th. Okay, next question, Divya, is for you. You tell me, if I say 1 raised to n, तो क्या होगा? One raised to n is Divya. Yes. नहीं याद आ रहा है? 1 raised to n क्या आएगा? No, sir. Anybody else? कोई बता सकता है जवाब? 1 raised to n का क्या आएगा? 0. No, it is not 0. 1 raised to anything is 1. Okay, मैं जैसे बता सकता हूँ. 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. 1 का क्यूब क्या आएगा? 1. ओके, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, रेज़ टू हाफ. 1. 1 का क्यूब रूट क्या आएगा? 1. So 1 raised to anything is 1. So we'll write this. तो याद रहेगा तुम्हें स्टेटमेंट. 1 raised to anything. ये मैथ्स फिजिक्स में बार बार आते रहता है. 1 raised to anything is 1. So once you write it, तो दिमाग में फिट हो जाता है. 1 raised to anything is 1. So अभी हम जो करेंगे ना, उसके लिए ये सब लगता है,
इसलिए ये पहले ही डिस्कस किया मैंने। 1 raised to anything is 1. So 1 का स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 10th पावर, 100th पावर सब 1, क्योंकि तुम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड करते हो, डिवाइड भी 1 से ही होगा स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए। तो 1 raised to anything is 1. ओके फाइन। अभी a raised to 0 रहेगा तो क्या होगा? n के बदले a raised to 0 रहेगा तो क्या होगा? लावण्य कैन यू ट्राई? a raised to 0 रहेगा तो क्या मिलेगा? 0? नो, E. सॉरी नेहा? A raised to 0 is equal to E. No, a raised to 0 is 1. Okay, anything raised to 0 मतलब क्या, वो है ही नहीं ना। Okay, 0 मतलब क्या है ही नहीं, मतलब it's like just 1 डालने जैसे। Okay, it's not 0, it is 1. Sorry. A raised to 0 is 0, not E, not 1, it is 0. So a raised to 0 is 0, not there, है ही नहीं। 0 का मतलब क्या है ही नहीं वो, तो है ही नहीं का रेलेवेंस क्या आएगा? 0। ओके, एग्जाम्पल लिखना है। 4 raised to 0 क्या हो जाएगा? 0, मतलब not there. So what here you will write? Same statement. Anything raised to 0 is 0. Okay, please copy that statement. Okay, fine. 11th. Now see, a raised to m प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। a raised to m, a raised to m कितना आएगा मालूम है तुम्हें? a raised to m प्लस a raised to m कितना आएगा? प्लस है, रिपीट, मल्टीप्लाई नहीं। Come on, any answers are welcome, right, wrong चलेगा। Is to m square. Okay, लावण्या is trying. लावण्या प्लीज वापस बोलो। A raised to m square. नहीं, a raised to m square कब होता? मल्टीप्लाई होता है ना, तब होता। ऐड हो रहा है ना, तो क्या बनेगा बोल में? 2 times a raised to m, 2 times. ओके, एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बेहतर समझोगे। देखो, 10 raised to 2 प्लस 10 raised to 2 थोड़ी ना लावण्या 10 raised to 4 होता है। 10 raised to 4 नहीं होता है, 200 होगा। कैसे 200 होगा? देखो, ये 100 है, ये 100 है, क्या होता है 100 प्लस 100? 200 ना। और वही मैंने लिखा, देखो 2 times 10 raised to 2 times. ओके, सो वही लिखा है 2 times a raised to m. ऑल ऑफ यू कन्विंस्ड? तो ये सब कंसेप्ट्स क्लियर करना है, ये सब हमें लगेगा, बार बार लगेगा। ओके, I hope you understood, all of you. Yes, no बोलो कुछ। Yes. नो बोला तो एक और एग्जांपल लूंगा। Yes, sir. लावण्या नॉट लुकिंग कन्विंस्ड, क्या हुआ? नॉट अंडरस्टूड? Understood.
Okay, so we are good to go to the next now. Suppose a raised to m plus b raised to m ऐसा रहेगा तो क्या होगा? a raised to m plus b raised to m क्या होगा? AB raised to M. No, no, ये cannot be added, cannot be, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम होना चाहिए. ओके, ये कैसा हुआ एग्जांपल? ये ऐसा हुआ. इट्स लाइक 10 raised to 2 plus 4 raised to 2. तो ऐड होगा? नहीं, ऐसा होता है जैसे तूने बोला ab raised to I think you said ab raised to m. So ऐसा थोड़ी होएगा 10 into 4 raised to 2. ये कुछ नहीं होएगा, ये ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते. Okay, so you cannot do the normal addition subtraction. Okay, so ये छोड़ देना. This will be like 100 plus 16. Okay, 116. So वो कुछ करके आ ही नहीं सकता ना ऐसा. ab raised to 2 या a square plus ऐसा कुछ करके नहीं आ सकता. बस ये एग्जांपल के तौर पे नीचे लिख दो, क्यों वैलिड नहीं है. यू कैन नॉट डू दैट. सो ये एग्जांपल के जरिए मैंने क्या समझाया तुम्हें कि बेस हैज टू रिमेन सेम. ओके, रेज टू सेम नहीं रहेगा तो चलेगा. 10 रेज टू 2 प्लस या इनटू जो भी है 10 रेज टू 4 ये सेम नहीं रहेगा तो चलेगा. बट बेस हैज टू रिमेन सेम. बेस कैन नॉट चेंज. Otherwise you cannot operate. Okay, fine. चलो लिखो नेक्स्ट. अगर हो गया हो तो if you are writing, if you are finished, just let me know when all are done. तो ये 12 रूल्स थे, रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट. उसमें से ये खास करके ये तो याद रखना अच्छी तरह से. 9th और 10th. a raised to 0 is 0 and 1 raised to anything is 1. ओके, ये होने के बाद नीचे एक दो लाइन छोड़ के लिखना डायमेंशंस. चेंजिंग द पेज. डायमेंशंस हम डेफिनेशन लिखेंगे किसका? डायमेंशंस का. डायमेंशंस. तो डायमेंशंस क्या है हम लिखेंगे. लिखो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे या इसके बाजू में. डायमेंशंस of a physical quantity dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities must be raised in order to get units of the derived quantity.
in order to get units of the derived quantity. Okay, तो तुमने ये लिखा है, एक बार वापस देखो. What are dimensions? The dimensions of a fundamental, क्या लिखा है? Dimensions of a, Physical quantity. हाँ प्लीज रिपीट लावण्या, जोर से बोलो. डायमेंशन का डेफिनेशन. Dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities must be raised in order to get units of the derived quantities. राइट. ओके, सो मैंने डेफिनेशन लिखने से पहले ही थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन तुम कुछ समझोगे नहीं. ठीक है, सो आई एम श्योर नन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन तुम्हें तब समझेगा जब मैं एक्चुअली डायमेंशंस निकाल के दिखाऊं. ओके, तो अगर पेज नंबर 6 तुम ओपन करो, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 तुम ओपन करो, ऑल ऑफ यू ऑन पेज नंबर 6, कैन यू सी वहां पे डायमेंशंस करके एक चीज है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस. उसके नीचे थोड़े क्वांटिटीज का वो चार्ट दिया है, देखो ग्रीन में डायमेंशंस निकाला हुआ है. ये सब मैं सिस्टमैटिकली डायमेंशंस वगैरह लिखाऊंगा. ओके, करूंगा. वो डायमेंशंस आने के बाद तुम्हें समझेगा ये डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है. जो डार्क में लिखा है देखो ऊपर, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मिला, आर द पावर्स टू व्हिच द कंसर्न्ड, ऐसा लिखा है उन्होंने. हमने क्या लिखा है? द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, तो वही लिखा हमने, कंसर्न वर्ड बस नहीं किया है. पर इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन सॉरी ये डायमेंशंस को मैं निकाल के दिखाऊंगा, फिर तुम्हें खुद ब खुद समझ में आएगा, अच्छा ये डेफिनेशन इसलिए ऐसा लिखा है. ठीक है, बट मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा. ओके, मैं तुम्हें सबका पहले यूनिट्स, फॉर्मूला सब बताऊंगा, बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू रिमेम्बर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट्स क्या है या पावर का डायमेंशंस क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है. many of you must have forgotten it. Okay, so what I will do, I will list all the formulas, I will write the units मतलब kg meter है, kg meter per second, newtons कौन क्या है, and then I will show you dimensions क्या होता है, निकाल के दिखाऊंगा. और जब मैं dimensions निकालूंगा तब तुम्हें समझेगा कि हाँ ये dimension का definition इसलिए दिया है. ठीक है, so we'll do that बिकॉज इसीलिए मैंने वो सब किया अभी, लॉज ऑफ इंडाइसिस वगैरह, बिकॉज वो लॉज ऑफ इंडाइसिस एक्सटेंसिवली यहाँ पे यूज होता है. ठीक है, सो आई विल डू दैट, बट बिफोर एज आई सेड, ऑल द क्वांटिटीज दैट यू हैव लर्नड, कौन से क्वांटिटीज अभी तक सीखे हैं तुमने फिजिक्स में 9th 10th तक, वो मैं बताता हूँ. यू हैव लर्नड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम. अब मैंने फट से पूछ लिया, सपोज मैंने पूछ लिया दिव्या को मोमेंटम क्या है, दिव्या विल बी ब्लैंक. Okay, I'm sure 100%, most of you. Okay, 95% of you. दिव्या बोलो मोमेंटम क्या है? नहीं याद आएगा ना? No. Okay, so yes. Thanks for being honest. So मुझे बस ये बोलना है कि ऐसा नहीं कि भाई 9th 10th में सीखा मतलब बच्चों को आता है, ऐसा नहीं. वो रिवाइज करना पड़ेगा कि मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, फिर तुम्हें याद होगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू, अभी टाइम जस्ट खत्म हो जाएगा, ये मैं सब करने गया तो. सो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑल दिस. मैं क्या करूंगा, मैं सब क्वांटिटीज पहले बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फिर कैसे उसका यूनिट्स याद रखने का, फिर उससे डायमेंशंस कैसे आता है, और ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है वो कैसे जस्टिफाई होता है. Okay, so all that we'll do next time, but please ये सब पढ़ के रखना उससे पहले, and then you will understand everything. So no homework apart from just reading this next day. Okay, so today I think we'll stop here, we'll not go any further, because next time बराबर ये dimension से फिर start करने मिलेगा. Okay, वरना अभी आधा अधूरा और next time अधूरा ऐसा होगा. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. I hope you have understood everything that we did today. Okay, bye bye all of you.